गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। उससे पहले बच्चों एक बात समझनी जरूरी है कि अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और आपको किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है तो आप एक काम करेंगे, अलग अलग चार्ज के कारण डायरेक्शन देखेंगे फोर्स का और उनकी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे because force is a vector quantity. And here it is assumed that the force on one charge due to other charge is not affected by the presence of other charges. And this principle is known as superposition principle, right? So I will take few examples to illustrate this one, right? First, for example, suppose there is an equilateral triangle and at the vertices there are charges. Suppose it is plus 1 microcoulomb charge, each of plus 1 microcoulomb charge at the vertices, right? And suppose you have to find the net force on any one charge. Suppose you have to find the net force on this charge, right? So first we will find that the forces on this charge will be due to this charge and due to this charge, right? Suppose we name it, suppose it is A, it is B, it is C, right? तो बच्चों सबसे पहले इस चार्ज की बात करते हैं। ये प्लस 1 माइक्रोकूलम चार्ज इस चार्ज को बच्चों क्या करेगा, रिपेल करेगा, राइट? दोनों पॉजिटिव चार्ज है। हाउ डज इट विल रिपेल? दिस चार्ज विल रिपेल दिस चार्ज। यहां पर ये चार्ज है, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा along this line, along the line connected directly to that charges. So this force will act here, right? Suppose this is FAB, sorry, FAC, force on the charge A due to the charge at C, right? हमें इस पर नेट फोर्स निकालना है बच्चों। ये भी फोर्स इस पर लगाएगा, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इस पर नेट फोर्स निकालना है, right? Now find the value of FAC. Suppose it is given 1 centimeter. It is equilateral triangle and the side is 1 centimeter. Then you have to find the force FAC. The value of FAC will be equal to, बच्चों चूंकि बात मीडियम नहीं दिया हुआ तो एयर मान लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह लिखेंगे 9 × 10⁻9 into this charge 1 × 10⁻6 into this charge 1 × 10⁻6 upon the distance square. डिस्टेंस कितनी बच्चों? 1 सेंटीमीटर चेंज करेंगे मीटर में, 1 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, एंड देन यू सॉल्व इट, राइट? जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए बच्चों 10⁻4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, 10⁻4 और 9 10⁻13 और ये दोनों मिला के 10⁻12, यानी कि 10 बचेगा, ये बचेगा 90 न्यूटन, राइट? नाउ यू सी दैट देयर इज अनदर चार्ज एट B and this charge will also repel this charge along this line. This will be FAC, force on charge at A due to charge at C. और आप ये देखेंगे बच्चों कि FAC की वैल्यू वही होगी, FAB की वैल्यू वही होगी जो FAC की वैल्यू होगी। निकाल सकते हैं बच्चों, आप वही चीज देख लेंगे। फिर FAB, A पर B के कारण से क्या हो जाएगा बच्चों, 9 × 10⁻9 ये चीज हो जाएगी इंटू 1 × 10⁻6 इंटू दिस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि वैल्यू विल बी द सेम 90 न्यूटन, राइट? नाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस चार्ज, ये हमने फोर्स का डायरेक्शन देखा और हमने वैल्यू निकाल ली। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट of the forces at this point. What is the resultant? So to find the resultant, because these are the vector quantities, you have to find the vector sum of these two forces. What is the vector sum? You first find that the angle between these two forces, this is obviously 60 degree. ये 60 degree होगा बच्चों, ये भी 60 degree होगा एंगल, राइट? यानी कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, 60 degree. So you will find the resultant by using this formula, F equal to root of FAB square plus FAC square plus 2FAFC cos theta. Theta is 60 degree. तो बच्चों इसमें आप वैल्यू रख देंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए बच्चों, 90 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर प्लस 2 × 90 × 90 into cos 60. cos 60 मीन्स sin 30, 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये फिर 90 × 90 बचेगा, 90 का स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ 90 का स्क्वायर मींस 90√3 न्यूटन. दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल. Because there is symmetry, if you have to find the net charge on this one, it will be the same. Net charge on this one will be the same, right?
इसीलिए कहा गया था कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज एंड दिस इज 90√3 न्यूटन। और दूसरी बात बच्चों, चूंकि FAB FAC की वैल्यू सेम है, और ये ध्यान रखें कि वेक्टर में अगर दो क्वांटिटी सेम होती हैं, वैल्यू सेम है, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके बीचों बीच से पास होगा। सो द रिजल्टेंट, दिस रिजल्टेंट विल पास थ्रू at an angle of 30 degree either with FAC or FAB. So this question we have solved using the superposition principle and using Coulomb's law. Now suppose another example. There is a square of side 1 centimeter and these are the charges plus 1 microcoulomb, plus 1 microcoulomb, plus 1 microcoulomb and plus 1 microcoulomb. All are plus 1 microcoulomb and distance is 1 centimeter. बच्चों चूंकि क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं तो मैं सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज में ले रहा हूं, जिससे कि आपको समझाना है कि वो हम सॉल्व कैसे करेंगे। वैल्यूज भी कुछ भी हो सकती है। अब आपको किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है, तो बच्चों कैसे निकालेंगे? सपोज यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, राइट? सो दिस चार्ज विल रिपेल दिस चार्ज अलोंग दिस लाइन, राइट? सपोज इट इज A, then it is FA. This charge will repel this charge. What along what line? This line. इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फोर्स, पहली बात तो इस फोर्स से बच्चों कम होगा वैसे भी, तो मैं थोड़ा सा कम दिखा रहा हूँ उसको। इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे अभी देखेंगे, ये हो गया इसके कारण से, ये B है सपोज कर लो, दिस इज FB and this charge will repel this charge along this line, this is F, suppose this is C, it is FC. अब बच्चों क्या करेंगे? FA की वैल्यू निकालेंगे इस चार्ज के कारण से। FA कितना आएगा बच्चों? अभी मैंने ऐसे एग्जांपल लिया था, यहाँ भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, 9/9 इंटू दिस चार्ज इन कूलम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यही आएगा बच्चों अभी जो मैंने सॉल्व किया था, 90 न्यूटन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ FB? इसके कारण से यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है बच्चों, ये फोर्स कम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दिस इज 1, सो इट विल बी 1√2 मींस √2, इट इज √2, ये √2 हो जाएगा। तो जब आप √2 करोगे तो 9/9 इंटू दिस चार्ज अपॉन √2 इंटू 10⁻²² का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये √2 का स्क्वायर नीचे आएगा, 1/2 हो जाएगा, इसका 45 न्यूटन आ जाएगा बच्चों। द वैल्यू ऑफ FC विल बी अगेन 90 न्यूटन, राइट? नाउ यू हैव टू फाइंड द वेक्टर सम। यहां बहुत जरूरी है कि आपका वेक्टर सम क्लियर होना चाहिए, आपने पढ़ रखा है। तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों? FA और FC का रिजल्टेंट निकालेंगे, दे आर एट 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री पे है रिजल्टेंट तो कैसे निकालते हैं बच्चों? रूट ऑफ FA² प्लस FC²। FAC का रिजल्ट, FAC रिजल्टेंट ऑफ FA एंड FC क्या हो जाएगा? रूट ऑफ FA² प्लस FC², क्योंकि 90 डिग्री पे है बच्चों। ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 90² प्लस 90², यानी 2 टाइम्स ऑफ 90 का स्क्वायर, मींस इट विल बिकम 90√2 न्यूटन, राइट? इन दोनों का रिजल्टेंट, चूंकि दोनों की वैल्यू सेम है FA और FC की, तो जो रिजल्टेंट होगा कहां से पास होगा बच्चों? बीचों बीच से पास होगा, यानी कि इस लाइन के अलोंग पास होगा, इसी लाइन के अलोंग। तब जो रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी FAC। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में बच्चों तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, FAC प्लस FB, सो इट विल बी 90√2 प्लस 90, राइट? और इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे √2 की वैल्यू रख करके, और ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, एंड द रिजल्टेंट फोर्स विल बी अलोंग दिस लाइन making 45 degree with FC और FA, और you say it will be along the direction of FB. वेक्टर सम बच्चों क्लियर होना चाहिए। मैं एक पॉइंट बताता हूं आपको वेक्टर सम का, जो आपने फॉर्मूला 11 में पढ़ रखा है। अगर दो फोर्सेज हैं, थीटा एंगल पे हैं, देन रिजल्टेंट इज F इक्वल टू रूट F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। लेकिन यहीं से एक बात आती है, और इसमें भी एक फॉर्मूला क्या होगा? tan अल्फा इक्वल टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 sin थीटा, जहां से अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद F1। इसी फॉर्मूले से एक बात निकल के आती है जो आपने पढ़ी होगी, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, वेक्टर की बात कर रहा हूं, सेम डायरेक्शन में है तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो आप माइनस कर देंगे बड़े से छोटे को, और डायरेक्शन हमेशा बड़े वाले का हो जाएगा। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं, देन यू विल फाइंड रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और अगर कोई और एंगल दिया हुआ है तो आप सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे। जहां तक एक पॉइंट और है कि अगर मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं, दो चीजें इक्वल हो जाएं, तो जो अल्फा आएगा वो θ/2 के इक्वल आएगा, यानी कि रिजल्टेंट बीचों बीच से पास होगा। तो ये बात हम यहां पर यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। वेक्टर सम की बात आएगी, वेक्टर सम में आपको बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। एंड सिमिलरली you can solve any type of questions, right? So today I have discussed the numericals based on superposition principle and Coulomb's law. Further on this next topic
tomorrow I will take some more questions. These are only the ideas to solve the question, right? So you solve the question and find out the different type of question to be solved by you, and you will become comfortable as many as questions you will solve, right? Thank you.